Okay, so welcome everyone. So again, we are back to a mock analysis session. So this session was held last week. So last week हमारा baby mock 3 हुआ था. So today we are again with the next mock, baby mock 4. So hope you all guys have taken the mock today, and people please start posting your scores on the group chat. Start, please. So I'll get to know what range of students are there. Yes, people please start posting your scores on the group chat. Even the people who have started recently or started their preparation recently, within a week, within a month, they also need to they also need to post the scores now, right? And those who are repeaters, please uh, write repeater along with your score. So I'll get to judge your score depending on it. Yes, 84, 120, 84, 74, first mark. Okay, great, सही चल रहा है. First mark. Okay. चलो फिर, so we should start the analysis. Those who have scored 200 plus are totally good. हाँ, मतलब exceptional case हो गए आप सब अभी. मतलब अभी के time पे if you are scoring 200 plus in this mock, then you are really a exception case for this. अगर preparation अभी थोड़ा और करो, advance पढ़ना ज़्यादा चालू करो, you will be able to get a good score in CAT, that's for sure. So please, yes. And those who have joined recently, so don't worry अगर ये high score देख के, because the same thing will happen with you also after 2 months, because they are the people who are done with their basics. So you have just recently started your prep, so doesn't make sense ki I expect a good score from your side. So don't worry if you are getting a positive score as of now within months before CAT, so that's totally fine. Okay, so I think most of the participants are here. Okay, Shashank, first mock today, great. 59 attempts only, DI full attempt, कौन 15% attempt. Okay, VRC में हर कोई ज़्यादा attempt करता है. Okay, total marks 37, starting with 25. Great, Shashank. अभी start किया और if you are getting positive marks, that's great. Because मेरे बैच के टाइम भी ऐसे लोग थे जिसको नेगेटिव स्कोर आता था. अभी के टाइम पे नेगेटिव स्कोर सीरियसली, अभी आप सबको पॉजिटिव आ रहा है तो ग्रेट थिंग है. ओके, सो ठीक है, आज एनालिसिस स्टार्ट करते हैं अभी. सो मैंने भी आज मॉक दिया. सो आज था जो वर्बल सेक्शन वाज टफ, नो डाउट. इट वाज मॉडरेट लेवल, नॉट एट ऑल इजी एट ऑल. ओके, सो वर्बल का फर्स्ट आरसी ही बहुत टफ था मतलब एज इन लेंदी था. सो इट वाज quite difficult, or I can say moderate level RC, which was not that easy to understand in the first go. Okay, so those people who are used to RCs, reading comprehension and other readings, so they'll get this RC very easy, because just thing is they उन्हें reading बहुत पहले से चालू कर दी है, so they'll able to comprehend the passage easily than the people who have started recently. Okay, so as I've always repeated कि reading is the main thing in verbal. reading. So अगर reading अभी अगर 2 महीने के लिए अभी those people who have started right now or a month ago, so reading, अगर if you are doing reading continuously for 2 months, after that you will get an improvement in your verbal section. So please don't worry. आज का first RC जो था, yes, it was a 10 question RC. सो उसमें थोड़ा डिफिकल्ट था. सो नो डाउट उसमें इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी थे. सो ऐसा आरसी आ सकता है, बट ऐसा नहीं होगा कि 10 क्वेश्चन आ जाए एक आरसी पे. सो डोंट वरी, एक आरसी अगर टफ आता है तो उसको छोड़ भी सकते हैं. कि इट इज नॉट लाइक दैट कि फर्स्ट आरसी आ गया तो अपने को अटेम्प्ट करना ही है. ओके, सो जैसे कि अगर मैं अपना बताऊं, मैंने ही फर्स्ट आरसी छोड़ दिया है. बिकॉज इतना लेंदी है. मैं पहले चेक तो कर लूँ. अभी ये फर्स्ट पॉइंट, वर्बल में ये चीज़ मैंने लास्ट मॉक एनालिसिस सेशन में बताया था कि वर्बल सेक्शन कैसे टैकल करना है. किसी ने अप्लाई किया था आज जो मैंने लास्ट वीक बताया था? सो प्लीज़ रिस्पॉन्ड इन द ग्रुप चैट कि आरसी सिलेक्शन में थोड़ा टाइम दिया था क्या, और इज द स्ट्रैटेजी विच आई हैड एक्सप्लेन्ड लास्ट वीक. सो इफ यू हैव अप्लाइड और नॉट, सो प्लीज रिस्पॉन्ड इन द ग्रुप चैट. Yes, Shivangi, yes. Okay. And other people?
if not then please respond to did. Okay, yes, चलो अच्छा है, एक चीज दिमाग में रही और if और अप्लाई किया है. Some of you have not applied, so don't worry, अभी next मॉक जब जब होगा. So again I am repeating the strategy for verbal कि स्टार्टिंग में सारे आरसी पे चेक कर लो, सारे आरसी चेक कर लो, मतलब पूरे एक वर्बल सेक्शन को स्कैन कर लो. द स्कैन इज द राइट वर्ड फॉर दिस. स्कैन कर लो तो कौन से आरसी इजी हैं, और इफ यू फाइंड easy to understand or easy to comprehend that RC, so you should obviously start with that RC. That's the main thing कि वर्बल में जो आरसी इजी है और विच इज इजी टू कॉम्प्रिहेंड, सो वो आरसी से स्टार्ट करना विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इन द फर्स्ट गो, राइट. सो द मेन थिंग इज आरसी सिलेक्शन. सो स्टार्टिंग में RC selection was the main thing in verbal section. After that, people who are not done with their RC समझ नहीं रहा है, RC सारे नहीं समझ रहे, और people you are able to do, or you are able to do only one RC at a time in one mock. So एक RC करो, उसके बाद सीधा वर्बल सेक्शन में चले जाओ. वर्बल सेक्शन वर्बल एबिलिटी वाला, मतलब वो जो 10 क्वेश्चन जो आते हैं ना, नॉट नेगेटिव वाले, जिसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं होते, पैराजम्बल्स, समरी. ओके, सो वो क्वेश्चन कर लो, एक आरसी करो, चलेगा, समझ के करो, ग्रेट. उसके बाद फिर अभी के लिए एज ऑफ नाउ फिर वर्बल के क्वेश्चंस करो, वर्बल एबिलिटी के जो है इसके, पैराजम्बल, समरी, ऑड मैन आउट. ओके, तो ये 3. सो अगर स्टार्टिंग में ही, अगर आई एम नॉट टारगेटिंग कि सारे आरसी में कर दूं आज, यस, फर्स्ट वन वाज डिफिकल्ट, बट उसके बाद सेकंड थर्ड एक कंपनीज का आरसी था. इफ यू ऑल गाइज हैव रिमेम्बर दैट कि मोस्ट ऑफ द कंपनी से स्टार्ट होता था वो आरसी. सो वो आरसी इजी था एंड शॉर्ट भी था, प्लस शॉर्ट था, जरूरी नहीं इजी हो, पर दैट आरसी वाज दैट आरसी वाज इजी टू कॉम्प्रिहेंड. यस, सो वो मोस्ट कंपनीज वाले जो आरसी था, उस आरसी को कॉम्प्रिहेंड करना इजी था. सो दैट गोज अकॉर्डिंगली. ओके, सो वर्बल सेक्शन में यही था कि आरसी स्किप करना सीखो एंड गेट योर प्रायोरिटीज फर्स्ट, कि जो आरसी इजी है वही करना है. और वर्बल में यही स्ट्रैटेजी यू ऑल गाइज हैव टू अप्लाई इन योर नेक्स्ट मॉक. प्लीज हैव अ प्लेज फॉर दिस कि जो आरसी टफ होगा उसको उसी वक्त छोड़ना है, और इन द फर्स्ट गो व्हेन यू हैव स्टार्टेड द मॉक, फर्स्ट स्कैन योर वर्बल सेक्शंस. ओके, वर्बल सेक्शन पैराजम्बल्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है. यस, लास्ट के जो 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होते हैं, सो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है. तो इसीलिए वही अप्लाई करना, वो सॉल्व करना एट अ टाइम ज़्यादा इजी होता है. सो आज का जो पैराजम्बल था, नो डाउट वो भी थोड़ा टफ था. सो वर्बल सेक्शन वाज मॉडरेट लेवल कंपेयर टू कैट. ओके, सो वर्बल सेक्शन में जिसको कम आया, नेगेटिव आया, सो डोंट वरी, वर्बल सेक्शन अच्छे लेवल का था, आई कैन से दैट. ओके, एक्यूरेसी कैसे बढ़ा है, डोंट वरी, अभी सिर्फ जो आता है वही अप्लाई, वही सॉल्व करना चालू करो. पीपल व्हाट, अभी मैंने जैसे फर्स्ट स्टार्टिंग में किसी ने बताया था 80% अटेम्प्ट किए. 80% अटेम्प्ट क्यों किए वर्बल में? सबसे स्कोर कम वर्बल में आता है, सो व्हाई टू अटेम्प्ट 80% ऑफ द क्वेश्चंस. सो स्टार्टिंग में जितने क्वेश्चंस आते हैं वही करो, और जितने आरसी समझ पे आते हैं वही आरसी पे जंप करो. ओके, सो ऐसा है. और लास्ट में जो 10 क्वेश्चन आते हैं उसको छोड़ो मत. अगर 5 मिनट बचा तो भी कुछ भी मार्क करके छोड़ो मत, बस मेक अ हैबिट ऑफ इट कि छोड़ना नहीं है लास्ट के जो 10 क्वेश्चन होते हैं, बिकॉज दे आर नॉन नेगेटिव. ओके, सो वर्बल सेक्शन यही था. कमिंग टू द मेन सेक्शन, DILR लास्ट टाइम जिसने मॉक दिया है बेबी मॉक 3, उससे लेवल फॉर श्योर इट वाज डिफिकल्ट देन द बेबी मॉक 3. ओके, सो बेबी मॉक 3 में क्या था, सब मैट्रिक्स थे. इस बार चेंज हुआ और ये कैट के मॉक, मैं बोल सकता हूँ कि हाँ कैट का मॉक था. ओके, कैट का मॉक था. स्टार्टिंग में जो आया DILR में, गेम्स एंड टूर्नामेंट भी आया, हाँ DI भी आया. DI अगर अच्छे से करते तो इजी आता है. वो कभी कभी क्या होता है, DI का सेट अजीब दिखता है दिखने में, पर क्वेश्चन इजी होते, सो यू कैन टैकल दोज क्वेश्चन इजीली. वेयर इज कभी कभी एक मैट्रिक्स ही इतना टफ आ जाता है कि DI चूज करना विल बी अ बेटर ऑप्शन कंपेयर टू चूजिंग अ मैट्रिक्स क्वेश्चन. ओके, एट अ टाइम. सो मेन थिंग अगेन DILR में व्हाट आई हैव गिवन द स्ट्रैटेजी फॉर इट कि लास्ट वीक मैंने बताया था. सो have you guys applied that strategy in this mock? Please respond on the group chat.
एक मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी, आई विल बी रिपीटिंग दैट, बट प्लीज बताओ जिसने ये अप्लाई किया तो एक्चुअल में। यस, सो किसी को कुछ लगा इम्प्रूवमेंट? यस यस, आएगा ही इम्प्रूवमेंट, बिकॉज द मेन थिंग इज सिलेक्शन इज द मेन थिंग इन DILR। वॉर्बल में एक बार कम सिलेक्शन चलेगा, पर DILR में तो सिलेक्शन इज द मेन थिंग फॉर श्योर। तो सिलेक्शन क्या है? अगेन DILR सेक्शन आया सामने, give 2 minutes for it, scan the whole DILR section. The main thing, the main crux of this session is scan the DILR section. To be highlight this bold, highlight bold this line कि scan करना है for sure, scan the DILR section. अभी आज तो जरूरी ही था कि DILR का सेक्शन स्कैन किया जाए, बिकॉज द फर्स्ट set in the DILR section was not that easy, to be very frank. Starting में first go में नहीं हो जाता, because compared to the previous mock which you all guys have given. So please, again same strategy for DILR. First give 5 minutes, give 3 minutes, scan the whole paper. People at times say कि ये 3-4 मिनट देख के स्कैन करना, this is totally a time waste, but actually it is a time investment for you कि you will get to know कि कौन से easy set है और कौन से tough है. So you will directly jump to the easy sets on in this section. Okay, so that was the main thing. सो स्टार्टिंग में DILR में जो इजी सेट है वो पकड़ने हैं. DI जो आज 2 सेट थे DI के. ओके, DI में लोगों को क्या गलती होती है? DI के 2 सेट आए, आज 2 सेट थे DI के, पर्टिकुलरली DI के डेटा इंटरप्रिटेशन के. ओके, सो आज किसी ने क्या गलती की होगी कि दे हैव ट्राइड अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस इन DI. सो प्लीज पीपल डोंट डू दैट कि अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं DI में, सो सब करने जरूरी नहीं है, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं एंड दैट माइट डिक्रीज योर स्कोर, बिकॉज कुछ नेगेटिव मार्क्स आ जाए तो उसके वजह से शायद स्कोर कम हो जाए. सो प्लीज जो क्वेश्चन श्योरिटी के साथ कर सकते हो वही करो. दिस विल इंक्रीज योर एक्यूरेसी एज वेल. ओके, सो प्लीज DI के जो क्वेश्चंस होते हैं जरूरी नहीं हर क्वेश्चन करो, बट इजी क्वेश्चन हर सेट के करो. ओके, कमिंग टू द LR सेक्शन. LR में कुछ सेट्स इजी थे, नो डाउट कि उसको फर्स्ट गो में कर सकते थे. मैट्रिक्स थे, पर एक कॉलेज टाइप का था. कॉलेज टाइप का नहीं, मतलब उसको एक तरीका होता है, उस तरीके से सॉल्व किया जाता तो हो जाता था. डोंट वरी, यू विल गेट टू नो द शॉर्टकट्स आगे जाके कि कैसे सॉल्व करना है, एक DILR को कैसे अप्रोच करना चाहिए था. सो अभी एज ऑफ नाउ प्लीज मेक पॉइंट, प्लीज नोट डाउन अ पॉइंट कि DILR सेक्शन भी स्टार्टिंग में 3 मिनट डाल के 2 मिनट डाल के स्कैन करना है, और द DILR सेट which you find comfortable, you have to start and directly jump to those set only. Okay, don't worry. CAT में मैं बताता हूँ, CAT में doing 4 sets of DILR और at a time 5 sets of DILR सिर्फ करने से सॉल्व 99 परसेंटाइल आता है DILR सेक्शन में. दिस इज ट्रू, बिकॉज 5 सेट करने हैं, टोटल 8 सेट्स आते हैं, 3 सेट तो सबको छोड़ने हैं. 99.99 परसेंटाइल DILR सेक्शन में लाने के लिए भी 3 सेट छोड़ोगे तो भी चलेगा. दैट इज नॉट अ बिग डील. सो इसीलिए 5 सेट करने इज द मेन थिंग. Target in the first go, target only 3 sets, and those who have started the prep recently or within a week or within a month, those people have to target only 2 sets as of now. So please don't worry if you are not able to do a single set also. Starting में सबको same difficulty होने वाली है, but once you are done with your basics, improvement आना start हो जाएगा. Okay, that's our responsibility. ओके, एंड DILR में यही था. DILR में इफ यू वांट एक सेट बताता हूँ मैं, जैसे कि ये. ओके, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. एक DILR का एक सेट बताता हूँ, इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए था. ओके, देखो फर्स्ट RC मैंने फर्स्ट क्वेश्चन RC का था. 12 क्वेश्चन तक मैंने अप्लाई सॉल्व भी नहीं किया है. आई हैवंट लुक, मैंने तो RC रीड करना भी स्टार्ट नहीं किया था, मैंने छोड़ दिया स्टार्टिंग में. सो यू ऑल हैव टू डू द सेम फॉर at least scoring a minimum marks in verbal section. Okay,
हाँ, सो ये वाला इजी सेट था, हाँ इजी था, इसको सिर्फ सॉल्व करना आना चाहिए था. दिस वाज अ टाइप ऑफ अ ट्रिकी, आई कैन से कि ट्रिकी डी आई एल आर सेट था. इतना डिफिकल्ट नहीं था, पर ये इजी सेट में पर ट्रिकी था. नॉट अ मॉडरेट लेवल, नॉट अ टफ डिफिकल्ट लेवल, इट वाज अ ट्रिकी सेट. ओके, सो दिस वाज द मेन थिंग कि इस सेट को सॉल्व करना चाहिए था. मैंने एलआर में बताया था कि 3 बार रीडिंग करो पूरे सेट को. फर्स्ट गो में करो कि जितना अप्लाई कर सकते हो उतना, मतलब पुट डाउन करो, नोट डाउन करो. फिर सेकंड रीडिंग में जितना एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसको अप्लाई करो. थर्ड पे भी वैसे. हाँ, मोस्ट ऑफ यू हैव क्रैक्ड इट, ग्रेट. बट दोज हु आर न्यू, आई कैन गारंटी कि उसमें स्टार्टिंग में नहीं हुआ होगा मोस्ट ऑफ पीपल, बिकॉज ये स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, इसीलिए लोगों को लगता है टफ है. टफ नहीं है, ट्रिकी है ये सिर्फ. ओके, दोज हु आर डन विद द बेसिक्स, ये आगे जाके समझ में आ जाएगा. विद इन अ वीक समझ में आ जाएगा. अगर preps if you have started your preparation now, within a week ये सेट सॉल्व कर लोगे, बिकॉज इतना टाइम नहीं लगता है DLR के बेसिक्स जानने में. ओके, सो इसीलिए अभी स्टार्ट करते हैं. DILR का यही था क्रक्स. ओके, जैसे कि एक और सेट बताता हूँ. हाँ, दिस वाज अगेन अ इजी सेट. इसमें हाँ, ये क्योंकि किसी किसी के लिए नया सेट हो, इसमें क्या होता है, इसमें क्रैक होना जरूरी नहीं, इसमें क्रैक नहीं करना पड़ता है. ऐसे टाइप पजल में जितनी इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्फॉर्मेशन को एक पेज पे पुट डाउन करो इन योर शॉर्ट वर्ड्स ऑब्वियसली. ओके, जितनी इन्फॉर्मेशन दी है एक पेज पे नोट डाउन करो, योर वर्किंग पेज ऑब्वियसली. सो फिर क्वेश्चन स्ट्रेट अवे गो टू द क्वेश्चंस. हु कैन बी अ मेंबर ऑफ टीम साइज ऑफ 5. अब साइज ऑफ 5 में है, कौन से पॉसिबिलिटी है वो आपको सबको दिखना चालू हो जाएगा, बिकॉज किसी किसी की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, उसको क्रॉस करके आपने पेज पे लिख दिया है तो सामने सामने पिक्चर क्लियर होती जाएगी. वंस यू हैव पुट द पॉइंट्स ऑन योर पेपर, कि जैसे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे सो पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे. ओके, सो इसको ये टाइप के DILR सेट को ऐसे अप्रोच करना है कि ये फर्स्ट गो में सॉल्व नहीं होने वाले पूरे, कि मतलब मैट्रिक्स का कैसा होता है, हर एक ब्लॉक भर जाता है, ब्लॉक ब्लैंक जो होता है हर किसी में डेटा आ जाता है. इसमें डेटा नहीं आने वाला है हर ब्लैंक में. ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ दो, आगे जाके सीधा क्वेश्चन पे जाओ, और फिर देन कंडीशंस को थोड़ा ध्यान में रख के फिर उसके साथ खेलो तो हो जाएगा सॉल्व. ओके, सो दिस वाज द क्रक्स ऑफ दिस. दिस वाज अगेन अ इजी सेट. इसमें थोड़ा ट्रिकी नहीं बोल सकता, पर ये इजी ही सेट था. इसको हाँ, द मेन थिंग इन दिस टाइप ऑफ सेट इज डेटा पुट करने आना चाहिए. कैसे, कोई कोई डेटा कैसे पुट करता है, एक जगह यहाँ पे, एक जगह लेफ्ट में, एक जगह राइट कॉर्नर में, वो हर जगह डेटा स्प्रेड हो जाता है. इसको अगर सिस्टमैटिक डेटा फिल किया है ना, अभी ये डाउट सॉल्विंग में बता दूंगा मैं, जब डाउट सॉल्विंग होगा जिसका विधान सर या फिर अगर मेरा होता है, सो उस वक्त बताऊंगा, उस वक्त भी बता दूंगा कि डेटा पुट करना इज द मेन थिंग इन दिस टाइप ऑफ सेट. बिकॉज कि डेटा अगर सिस्टमैटिक पुट करते हो, सो व्हेन वंस यू गो टू द क्वेश्चंस कि हेलेन का, सो फर्स्ट क्वेश्चन हेलेन का है, सो हेलेन का डायरेक्टली आपको सामने सामने दिखेगा डेटा. सो डेटा पुट करने आना चाहिए. ओके, सो सिस्टमैटिक वे इज द मेन थिंग. ओके, सो ऐसा सेट था ये. एंड हाँ, ये इजीएस्ट सेट था, इजीएस्ट. ये DILR सेक्शन में आज इजीएस्ट सेट यही था. इसमें भी फुल डेटा अप्लाई, मतलब फुल सारे ब्लैंक फिल नहीं होते. लोग फिल करना चालू करते हैं, मतलब जिद अड़ जाते हैं कि भाई आज तो डेटा फुल फिल करना ही है हमको. नहीं, इसको जितना फिल कर सकते हो उतना फिल करो, ब्लैंक छोड़ो, उसके बाद सीधा क्वेश्चन में जाओ. एलिमिनेट करना पड़ेगा ऑप्शन, एंड देन आंसर आ जाएगा. एलिमिनेट करोगे बी एंड डी, जैसे कि बी एंड डी साथ में नहीं हो सकते थे वो केस में, क्योंकि सी एंड डी यहाँ पे हो सकता है एंड में, ऐसा. तो ऐसे ऐसे पॉसिबिलिटीज बनते थे. सो जितना डेटा है उसको पुट करो, उसके बाद स्ट्रेट अवे गो टू द क्वेश्चंस एंड स्टार्ट एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस, यू विल गेट योर आंसर. ओके, सो DILR में क्रक्स आज का यही था. Set selection was the main thing, and putting the data in a systematic way. Try to put your data in a systematic way which will help you indirectly, because you are the only one who will be understanding those parts which you have put on the paper. So main thing is put the data in a systematic way so you can understand the data easily. अच्छा, समझा? Yes.
So any doubt in DILR section, please post on the group chat. DILR का आई एम रिपीटिंग कि सेट सिलेक्शन के लिए टाइम दो, स्टार्टिंग में सिलेक्ट दो सेट. अगर जैसे कि मैंने आज सबसे पहले सेट यही किया है बिकॉज दिस वाज द इजीएस्ट सेट. तो इसमें 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आराम से बनते हैं. 3-4 क्वेश्चन से 12 मार्क्स बढ़ जाते हैं आप सबके. 12 मार्क पॉजिटिव मार्क्स अभी आ रहे हैं सिर्फ एक सेट सॉल्व करने के, विच वाज द इजीएस्ट. सो सब इजी हर सेक्शन में करोगे सो स्कोर बढ़ेगा ऑब्वियसली. ओके, सो डोंट वरी. 61 नो नीड टू डू. स्टार्टिंग में पहले इजीएस्ट सेट तो कर लो. टीआई के जैसे कि मैंने भी सेट नहीं किया बिकॉज जल्दी करने की जरूरत है नहीं. ओके शिवांगी. सो इसमें क्या था, डेटा है, प्योर कैलकुलेशन है, इसके ऊपर इतना कुछ नहीं है. ये डाउट सॉल्विंग में सॉल्व करना कैलकुलेशन है, इतना मतलब ट्रिकी इसमें कुछ नहीं है. सामने डेटा दिया है, डेटा इंटरप्रेट करो, सॉल्व करो, कैलकुलेशन करो, बस उसमें और कुछ नहीं है. ठीक है. सो एक मिनट. हाँ ठीक है. सो ये DILR का क्रक्स था. समरी बताता हूँ मैं. DILR में सेट सिलेक्शन इज द मेन थिंग. पुट द डेटा इन अ सिस्टमैटिक वे and easiest set पहले start करो. This will boost up your confidence in the DILR section. even if you are अगर मतलब verbal section सच में एकदम टफ गया है तो DILR the section which can help you to score to get a good score. बिकॉज वर्बल सेक्शन में अगर स्कोर कम हो गया तो ओवरऑल स्कोर भी कम होगा. तो DILR में अगर आपने शांति विद अ पीस माइंड अगर स्टार्ट किया सॉल्व करना है विद स्टार्टिंग विद द इजीएस्ट सेट इन द फर्स्ट गो, सो स्कोर बढ़ेगा. ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट. नेक्स्ट मॉक में यू हैव टू अप्लाई दिस. आई विल बी आस्किंग कि किसने अप्लाई किया इन द नेक्स्ट सेशन. आज कॉन्स का बताता हूँ. कॉन्स भी अच्छा लेवल था आज का जो मॉक था कंपेयर टू द बेबी मॉक 3, इट वाज अ लेवल अप. इट वाज अ लेवल अप कंपेयर टू द बेबी मॉक 3. ओके, सो हर सेक्शन आज के तीनों सेक्शन उससे टफ थे कंपेयर टू द बेबी मॉक 3. ओके, सो बेबी मॉक 3 में DILR एकदम चिंदी इजी था. आज का बेबी मॉक 3 में DILR सेक्शन वाज सिमिलर टू द कैट का सेक्शन. ओके, सो अगेन कैट कॉन्स का सेक्शन भी कैट के सिमिलर था. कुछ क्वेश्चन इजी थे. द मेन थिंग वाज कि आज इजी क्वेश्चंस ही उठाने थे. जितना आता है उतना ही करो ना. जो नहीं आता है उसको ज्यादा टाइम दो के टाइम वेस्ट भी होगा, नेगेटिव मार्क्स भी आएंगे. सो अगर कॉन्स में 32-34 क्वेश्चन है, इफ यू आर एबल टू डू ओनली 10 क्वेश्चन, सो व्हाई टू ट्राई 11th क्वेश्चन इफ यू आर totally blank with those questions. So do stick to your mind कि जितने 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करो. 10 क्वेश्चन सॉल्व किए सो 30 मार्क्स पॉजिटिव मार्क्स तो आ रहे हैं एटलीस्ट इन स्टार्ट ऑफ योर प्रेप. तो जितने क्वेश्चन आते हैं उतने ही करो. एंड अगेन मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई थी कॉन्स में. सो अब वापस हर सेक्शन के लिए मैंने अलग स्ट्रैटेजी बताई. इसमें स्कैन वाली स्ट्रैटेजी नहीं थी कॉन्स के सेक्शन में. सो पीपल रिस्पॉन्ड की कॉन्स के स्ट्रैटेजी किसी ने अप्लाई की थी. उस स्ट्रैटेजी का मैंने नाम दिया था 20-20-20. ओके, किसने, हाँ यस, मेरे बोलने से पहले ही लोगों ने किया है. ग्रेट. किसने अप्लाई किया बताओ. ये स्ट्रैटेजी बहुत काम आएगी. हाँ, कॉन्स की तो फॉर श्योर आगे काम आ जाएगी. जो भी ये सुन रहा है आज सुन लो, 20-20-20 वाली स्ट्रैटेजी काम आने वाली है. अलीशा अप्लाइड, पार्थ अप्लाइड, अभिषेक अप्लाइड. ग्रेट. सो अप्लाई ये करना जरूरी था. अगेन आज के सेक्शन का मैं पहले बता दूं क्या था समराइज, कि एनालिसिस बता देता हूँ कौन सा सेक्शन क्या था. उसके बाद मैं एट द एंड आई विल बी रिपीटिंग कि क्या स्ट्रैटेजी है कौन में. हाँ आई विल रिपीट द स्ट्रैटेजी. स्टार्टिंग में सबसे पहले कौन का लेवल था एक लेवल अप. सो इसमें मेन थिंग इज जो इजी है क्वेश्चन वही सॉल्व करो. ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चन कि जिसकी तुमने प्रैक्टिस कर ली है. जैसे कि पीपल हु आर डन विद योर अरिथमेटिक, मतलब परसेंटेज फिर प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, ये सब क्वेश्चन, ये सब टाइप के अरिथमेटिक क्वेश्चन होते हैं. तो पीपल हु आर डन विद योर अरिथमेटिक only try to do in the first go की अरिथमेटिक के क्वेश्चंस. ओके, सो फर्स्ट गो में सब अरिथमेटिक के क्वेश्चंस ट्राई करो ना. सेकंड कि जिसने अगर कोई ज्योमेट्री किया है, ज्योमेट्री बेसिक्स कर दिया है, तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन करो. अगर किसी ने फंक्शंस नहीं किया है तो क्यों फर्स्ट गो में देख के टाइम वेस्ट कर देते लोग, ट्राई भी नहीं करेंगे,
सॉल्व भी नहीं होगा, पर देख के इसको पूरा रीड करने में, पूरा रीड करेंगे 2 मिनट लगा के, फिर टाइम वेस्ट, और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। क्यों? क्वेश्चन देख के ही अजीब लग रहा है, छोड़ दो उसको अभी के लिए, बाद में करेंगे अगर टाइम बचा दो। पर इजीएस्ट क्वेश्चन ढूंढना इज द मेन थिंग। जो अरिथमेटिक किया है उसको तो टाइम दे नहीं पाए, फिर फंक्शन जैसा क्वेश्चंस को देख के टाइम वेस्ट किया। ओके, ये हो गया आज का एनालिसिस कॉन्स का। दूसरी बात ये कि अभी स्ट्रैटेजी का, दो स्ट्रैटेजी बताता हूँ। एक स्ट्रैटेजी 20-20-20 और दूसरी स्ट्रैटेजी है, ये है स्ट्रैटेजी नहीं है, एक ये पॉइंट है, हिडन पॉइंट है, कि कभी कभी ऐसा होता है मॉक में भी कि लास्ट में इजी क्वेश्चंस होते हैं, और स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन से ही सबको टाइम देना चालू किया, तो लास्ट के क्वेश्चन देख नहीं पाए, इसीलिए सारे इजी क्वेश्चन हट गए, तुम्हारे मिले ही नहीं सॉल्व करने। सो कभी कभी ये लोग ट्रिक क्या खेलते हैं, टैक्टिक्स है लोग की, कि लास्ट में इजी क्वेश्चन रख देंगे, ताकि जो स्टार्टिंग में सबको टाइम दे देगा क्वेश्चन के स्टार्टिंग के फर्स्ट 10 क्वेश्चन को, तो वो लास्ट के इजी क्वेश्चन को देख ही नहीं पाए, और उसका स्कोर ऑब्वियसली कम ही आएगा फिर। सो मेन थिंग इज लास्ट में इजी क्वेश्चंस भी आते हैं एट अ टाइम। अगर वो सामने वाला खेलना चाहता है, वो इतना मतलब ऐसे ऐसे टैक्टिक्स खेलेगा कि तुम्हारे स्कोर कम आए। कैट का एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, वो हर किसी को थोड़ी 99% देगा, तो वो ऐसे ऐसे टैक्टिक्स खेलेगा कि लास्ट में इजी रख दूं मैं। तो थोड़ा ध्यान रखो कि कभी लास्ट में इजी आ सकते हैं। सो जो नहीं आ रहा है उसको ऑन द स्पॉट छोड़ना सीखो प्लीज। रीड करने में भी टाइम वेस्ट मत करो, देख के ही अजीब लगता है। फंक्शंस के क्वेश्चन मैंने खुद ने छोड़ दिए अगर कभी कभी मुझे अजीब लगता है, बिकॉज मेरा यही रूल है, फंक्शंस के क्वेश्चन मुझे लास्ट में मैं करता हूँ, क्योंकि अरिथमेटिक ये सब इजी क्वेश्चन में पहले सॉल्व करूँ ना। क्यों? बिकॉज वाई टू टाइम वेस्ट टाइम ऑन फंक्शंस के क्वेश्चन इन द फर्स्ट गो। सो इजी क्वेश्चंस को देखना सीख लो, और एल्स जो चैप्टर तुमने पढ़ा है, जिसके क्वेश्चंस तुमने प्रैक्टिस किए हैं, तो वो क्वेश्चंस ढूंढ के सॉल्व करो। यस, टुडे आई स्टार्टेड विद द लास्ट ओनली। जरूरी नहीं है जयंत की लास्ट से स्टार्ट करना जरूरी है, बट इफ यू हैव ट्राइड दिस एट दिस टाइम सो ग्रेट, चलेगा, कुछ नहीं। लास्ट से भी क्वेश्चन ट्राई किए तो चलेगा, अच्छी बात है। हाँ, यू कैन ट्राई दिस वन ऑल्सो, कि लास्ट क्वेश्चन से ट्राई करो फर्स्ट क्वेश्चन तक, कि प्रीवियस जाने में थोड़ा ज्यादा टाइम होगा, पर ऐसा सबसे बेस्ट है कि फर्स्ट से स्टार्ट करो, पर जो टफ है उसको ऑन द स्पॉट उसी वक्त छोड़ना सीख दो। ओके, हाँ, अब मेन स्ट्रैटेजी कॉन्स की क्या थी। कॉन्स की स्ट्रैटेजी ये है कि कॉन्स का सेक्शन आया, ओके, पेज पे एक पेज लो, ऊपर इन द हेडिंग राइट 20, मिडल में 20, लेफ्ट में 20, मिडल में 20, राइट में 20, 20 20 20। दिस इज द हेडिंग ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। मतलब एक ये कोई मतलब नाम वाम देने की जरूरत नहीं, पर ये है मेन थिंग। 20 मिनट्स लिख दो। ओके, सो व्हाट यू हैव डन इज 60 मिनट्स के आपके टाइम फ्रेम को यू हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 20 20 20। ओके, इन द फर्स्ट पार्ट, इन द फर्स्ट टाइम 21st मिनट जो आपके हैं, उसमें क्या करना है, कॉन्स के क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 10। सो फर्स्ट 20 मिनट्स में आपको फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में ही रहना है, उसके बीच में घूमो। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं आता है नेक्स्ट कर दो ऑन द स्पॉट। सेकंड करो, नहीं आता है ऑन द स्पॉट करो। थर्ड फोर्थ आएगा इजी वाले क्वेश्चन। तो टॉप जो फर्स्ट के 10 क्वेश्चन है उसको फर्स्ट 20 मिनट्स के अंदर अंदर सॉल्व करो, जितने हो सके उतने। तो फर्स्ट 20 मिनट्स में आपको फर्स्ट से लेकर 10 क्वेश्चन तक सॉल्व करो। अब कमिंग टू द नेक्स्ट 20 मिनट्स को 11th क्वेश्चन से लेके 22 क्वेश्चंस तक सॉल्व करो। सो ये 12 क्वेश्चंस, नेक्स्ट 12 क्वेश्चंस नेक्स्ट 20 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। सो अभी जो मिडल वाला 20 मिनट्स अपना बचा है, उसमें 12 क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करो, 11th क्वेश्चन। सो नहीं सॉल्व हो रहा है, नेक्स्ट, नहीं हो रहा है, सॉल्व, नेक्स्ट, ऑन द स्पॉट नेक्स्ट करना चालू कर दो। और जो जो इजी आ रहे हैं वो 12 क्वेश्चन के सेट में वही इजी करो सॉल्व, और 20 मिनट से पहले ही हो गए तो फिर भी प्रोसीड करो, नेक्स्ट सेट पे चले जाओ। अब लास्ट के 20 मिनट्स बचते हैं, उसमें लास्ट के 12 क्वेश्चन सॉल्व करो, जो बचते जितने क्वेश्चन बचते हैं। सो ऐसे 20 मिनट्स में डिवाइड कर दो, तो टाइम वेस्ट होगा भी ना, तो तुमको पता चलने लगेगा कि 20 मिनट्स हो गए मेरे, और मैंने अभी तक एक ही फर्स्ट फेज में 3 फेज में डिवाइड किया है। फर्स्ट 10 क्वेश्चन, सेकंड 12, फिर सेकंड 12, तो 3 फेज में हो गया डिवाइड। सो फर्स्ट 20 मिनट्स में आपका फर्स्ट फेज सॉल्व हो जाता है, जितना भी होता चलेगा, पर फर्स्ट फेज से निकल जाओ, मेन थिंग ये है। सेकंड 20 मिनट्स में सेकंड फेज में सॉल्व करो, सेकंड 20 मिनट्स खत्म हो जाए, सेकंड फेज से निकल जाओ। थर्ड 20 मिनट थर्ड फेज में रहो, और जितना हो सके सॉल्व करो। सो दिस वाज द मेन थिंग। Do try this strategy if you want. Maybe most of you might feel this strategy productive one, because ये चीज प्रोडक्टिव हो सकती है स्टार्टिंग में, बिकॉज इजी क्वेश्चन एट अ टाइम, विद इन अ टाइम सॉल्व करना स्टार्ट हो जाएंगे।
यस, फर्स्ट 10 क्वेश्चन, फर्स्ट 12 क्वेश्चन इन 10 मिनट 20 मिनट्स। यस, कौन बोल रहा है आपको विद इन 50 सेकंड में करना है, 15 से 30 सेकंड में करना है? नहीं, स्टार्टिंग के 10-12 क्वेश्चन 20 मिनट्स में सॉल्व करो, नॉट अ बिग डील। और सब लोग टारगेट मत करो कि 34 के 34 क्वेश्चंस करने हैं, 20 क्वेश्चंस करने हैं। टारगेट स्टार्टिंग में यही होना चाहिए कि आज के कौन के सेक्शन में मुझे 10 क्वेश्चन इजी वाले ढूंढ के सॉल्व करने हैं, बस 10 क्वेश्चन सॉल्व किया, 30 स्कोर आता है, बस 10 क्वेश्चन इजी करके फिर उसके बाद क्या होगा, 10 क्वेश्चन इफ यू आर एबल टू डू 10 क्वेश्चन विद इन लिमिट ऑफ टाइम, उसके बाद जो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो एडिशनल स्कोर होगा आपका, और उसके बाद कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बढ़ने लगेगा। तो उसके बाद जो टफ क्वेश्चन होंगे उस पर भी ट्राई करोगे तो शायद वो हो जाए। इसीलिए 10 क्वेश्चन ही टारगेट करो, 10 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद जो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो एडिशनल है आप सबके। ओके, सो यही चीज थी आज। सो आज का मॉक एनालिसिस यही चीज था, यही चीज स्ट्रैटेजी अप्लाई करो नेक्स्ट मॉक में। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट मॉक। नेक्स्ट वीक होने वाला है अभी वापस, हर संडे मॉक होता है नेक्स्ट संडे अभी। और होप यू ऑल गाइज आर कंप्लीटिंग योर डेली टारगेट्स। हाँ, डेली टारगेट्स अप्लाई भी कंप्लीट करते जाओ, ताकि हर एक मॉक के बाद उसका एप्लीकेशन प्रोडक्टिव होने लगेगा। योर मार्क्स विल स्टार्ट इम्प्रूविंग। ओके, यस हर सर आई कांट रिमेम्बर व्हाट आई रीड इन आरसी। आरसी में क्या होता है, याद मत करने जाओ, अंडरस्टैंड करो, कॉम्प्रीहेंड करने जाओ। सब याद करने जाते हैं आरसी में। कभी आप खुद अपने आप को सोचो, आप आरसी में याद करने जा रहे हो कि उसको समझते जा रहे हो? याद करने जाते हैं, मोस्ट ऑफ पीपल यही कर रहे हैं, वो आरसी को याद करने जाते हैं। फर्स्ट लाइन रीड करो, समझो उस फर्स्ट लाइन को ही। फर्स्ट लाइन रीड करना समझ गया तो आपको आरसी समझना चांसेस बढ़ जाते हैं। पर फर्स्ट लाइन नहीं समझा फिर भी आप आरसी को याद करने के लिए रीड करते जा रहे हो, तो मतलब नहीं है ना। यस, ओके, सो आरसी को फर्स्ट लाइन रीड करो, अगर समझ में आता है तो आगे प्रोसीड करते जाओ। और मे बी फर्स्ट का पैराग्राफ या फिर 3-4 लाइन रीड करो, उसके बाद समझ में आ रहा है, इफ यू आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड दोज लाइंस, सो प्लीज प्रोसीड विद दैट आरसी। और अदरवाइज देयर इज नो नीड कि वो आरसी सॉल्व करना जरूरी है, आरसी को स्किप कर दो। ओके, yes sir, I'm completing the target. Great people who are those who are completing the targets, great, अभी के लिए अच्छे चल रहे हो। और अभी थोड़ा टारगेट जल्दी कंप्लीट करना ज़्यादा ट्राई करो, बिकॉज आगे जाके थोड़ा टारगेट बढ़ाने पड़ेंगे। ओके, सो प्लीज़ आगे जाके थोड़ा टारगेट्स बढ़ाए हम, पर आपको सबको अपने टारगेट्स टाइम पे कंप्लीट करने होंगे। ओके, so thank you guys, I think we have done with our mock analysis session. Hope you all guys have understood. Please respond in the group chat so I can get to know ki if you are able to understand this session or not. Yes, because obviously आज सबका स्कोर कम ही आएगा compared to the previous mock, because previous mock तो एक baby mock एक्चुअली इट वाज अ बेबी मॉक की सच में बचकाने क्वेश्चन या फिर इजी क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन हर सेक्शन में, नॉट इंक्लूडिंग वर्बल, चलो पर डीएलआर कौन से हर में इजी क्वेश्चन होगा जो कैट में नहीं आते। और वो स्टार्टिंग दिया था ताकि इफ यू बूस्ट अप मिले आप सबको, यू जस्ट गेट अ किक स्टार्ट फॉर योर प्रेप। इसीलिए अभी ये मॉक इट वाज अ मिरर फॉर योर कैट। इसीलिए यही मॉक में जितना स्कोर आ रहा है यू कैन एक्सपेक्ट कि ये स्कोर से अपने को आगे बढ़ाना है। ओके, सो टारगेट की अभी ये स्कोर से ही अपने को आगे स्कोर बढ़ाते रहना है। मे बी नेक्स्ट मॉक में 5 बढ़े, 10 बढ़े, 2 मार्क बढ़े तो भी चलेगा, पर बढ़ना चाहिए। टारगेट करो कि स्कोर बढ़ना चाहिए नेक्स्ट मॉक में। ओके, व्हेन शुड वी गिव बेबी मॉक 1? दोज हु हैव नॉट गिवन बेबी मॉक 1 and 2, आई विल पोस्ट ऑन द ग्रुप विद इन 2 days कि कभी देना चाहिए। आई विल डिस्कस दिस विद राव सर कि जिसने बेबी मॉक 1 2 नहीं दिया, बिकॉज जैसे टारगेट जिस दिन टारगेट्स थोड़े इजी हो जाएंगे उस दिन बेबी मॉक बता देंगे जिसने नहीं दिया। सो दोज गाइज कैन give those mock at that time. Okay, हाँ, most of you have already given right, but those who have recently joined तो उनको तो बेबी मॉक बता दिया जाएगा जब टारगेट थोड़ी इजी होंगे और हेक्टिक नहीं होंगे, मतलब इजी टू हैंडल हो जाएंगे, तब बता देंगे कि उस दिन बेबी मॉक दे दो। ओके, सो ग्रेट, आई थिंक we are done with our session. Thank you guys, meet you in the next week or in the test session which we are having each day after the lectures. Okay, so meet you guys soon. Thank you so much.